سب سے دعا کرا اور پھر جب یہاں سے نکلنا ہو تو اپنا دین، اپنی جان، اپنا مال، اولاد، اپنی تندرستی سب کچھ خدا کو سو. ایسا نہیں ہو کہ سب سجدے میں ہو اور دل میں سارا بازار. یہ بھاؤ کا موڑ توڑ نہ دیکھو، عبد اور معبود کے رشتے کو دیکھو. تو یہ ہو کہ جان، مال، عزت، آبرو، تندرستی سب سے بڑی بات کی اپنا ایمان اللہ کے حوالے. آج کا حج بہت خطرناک ہے، امتحان والا ہے، بہت مشکل ہے اللہ کی ایمان کو بچائے. ورنہ وہاں جانے کے بعد اچھوں کو دوڑتے دیکھا، اپنے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، تندرستی سب اللہ کے حوالے کر. جاؤ تو یہ مت سوچو کاروبار کا کیا ہوگا، جاؤ تو یہ مت سوچو کہ بچوں کا کیا ہوگا. ارے سن لو، تم یہاں رہ کر اپنے بچوں کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے جتنی تمہاری خیر موجودگی میں اللہ کریم تم کی نگہداشت فرمائے گا. تمہارے کاروبار ہو، مال ہو، جائیداد ہو، ایمان ہو، تندرستی ہو، سب کی حفاظت اللہ کے حوالے کر دو. یقیناً اللہ کریم کی پناہ بڑی مضبوط پناہ ہے. جو جتنا اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازے گا. حدیث پاک، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا میں اس کو اس کے گمان سے زیادہ عطا کرتا. جو کچھ ہے سب اللہ کریم کے حوالے کر دو اور یہ سمجھ کر جاؤ کہ یہاں سے بالکل ہلکے پھلکے کچھ سوچنا نہیں کہ یہاں کیا ہوگا. انشاءاللہ واپس آؤ گے تو جیسا چھوڑ کے گئے تھے اس سے اچھا پاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اور یقین کامل نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ چند اور ایسی باتیں عرض کر دے کہ جو پورے سفر حج میں آپ کو خیال رکھنی ہو. ایک بات یہ ہے کہ ہر منزل پر پہنچنے پر اور وہاں سے رخصت ہونے کے وقت اللہ توفیق دے وقت مقروض نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ لیا. اب منزل کسے کہتے وہ بھی سمجھ لو. پہلے زمانے میں روزانہ جو سفر کر کے رات رکتے تھے وہ منزل ہوتی تھی، لیکن اب منزلیں بڑی تیز رفتار ہو گئی، دور دور ہو گئی. ہم یہاں سے چلے بمبئی پہنچے تو وہ ایک منزل ہے، بمبئی سے ایئرپورٹ پہنچے وہ دوسری منزل ہے، وہاں سے جدہ پہنچے یہ تیسری منزل ہے، وہاں سے مکے پہنچے وہ الگ منزل ہے، وہاں سے مینا عرفات پہنچے وہ الگ الگ منزلیں ہیں. یہ ہے منزلیں. وہاں جدہ آئے الگ منزل، بمبئی آئے الگ منزل، اپنے شہر میں پہنچے الگ منزل. یہ جو منزلیں ان منزلوں پہ جب پہنچو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ نہ صرف سفر حج میں بلکہ ہر سفر آقا علیہ السلام جب کسی منزل پر تشریف فرما ہوتے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرواتے اور دعا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس مقام کے شر سے، یہاں کی شرارت سے، یہاں کی خرابی سے مجھے پناہ میں رکھ اور یہاں کی سعادتوں برکتوں سے مجھے حصہ دے. تو یہ دعا ہر منزل پر ہر سفر میں کرنی چاہیے. تو جب بھی کسی منزل پہ پہنچے یا وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد آگے کا سفر کریں، وہاں اگر اللہ توفیق دے اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر لے، لیکن خیال رہے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رہے کہ احرام کی حالت میں پراگندہ سر میلا کچیلا رہنا چاہیے. آج کل تو خیر میلا کچیلا رہنے کا حال رہا نہیں. پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، 8 10 10 15 روز کا وہ احرام بنتا. کبھی آج سے احرام باندھ کے چلتے، کبھی کبھی مہینہ 2 مہینہ احرام رہتا تھا تو لوگ میلے کچیلے ہو جاتے تھے. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے چلتے ہیں تو بالکل چکا چک، بالکل اسنو وائٹ بنے رہتے. اور پھر اے سی میں ہے، ہوائی جہاز میں اے سی، جدہ میں اے سی، کوریڈور میں اے سی، بس میں اے سی، کمرے میں اے سی، ہوٹل میں اے سی، کہیں دھول نہیں، دھکر نہیں، دھواں نہیں، تو اے سی تو صاف ستھرے ہے ہی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بڑے نزاکت پسند، جہاں پہنچے تو پھر شاور کھولتے نہاتے، شاور کھولتے نہا تو ذرا بدبو آ رہی، بڑے بڑے نزاکت کا اظہار کرتے ہیں. ایسا نہ رہے. خاص طور سے جو حج کے ایام ہے اس میں بھی اس طریقے کی بات نہ کریں. اور نہانا بھی ہو احرام کی حالت میں خوشبودار صابن لگا لگا کے رگڑ رگڑ کے نہائے، ایسا نہیں نہانا چاہیے. اگر بس سنت طریقے سے کرنا بھی ہے احرام کی حالت میں صرف بدن پر سے پانی بہا لیں، میل کچیل نہ رگڑ رگڑ کے مسئلے نہیں، خوشبودار صابن کا استعمال کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی سن لے کہ ابھی میں سفر کی کچھ مبادیات بیان کر رہا، کچھ مسائل بیان کر رہا جو پورے سفر میں کام آنے والی ہے.
ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نیت کچھ اوقات میں ضروری ہے. مثلا جہاں احرام باندھنے کے وقت نیت، چاہے عمرے کی نیت ہو یا حج کی، یہ ضروری. بغیر نیت کے خالی احرام کی چادر اوڑھ لے، لنگی باندھ لے تو نیت نہیں ہوگی. جب تک کہ نیت نہ کرے. نیت کیسے کریں گے کل انشاءاللہ ہم بتائیں. نیت شرط ہے. ایسے ہی طواف کرنا، طواف کی نیت کی شرط ہے. بغیر نیت کے ساتھ نہیں 70 چکر خانے کعبہ کا لگا لے طواف نہیں ہونے والا. طواف کے لیے بھی نیت شرط ہے. صفا اور مروہ کے لیے بھی نیت کرنی ہے. کہ جہاں جہاں نیتوں کا ذکر آئے گا اس کا خیال رکھیں کہ نیتیں کرنی ضروری ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں نیت کر لی وہ ہو گئی نیت، اور اگر زبان سے کر لیا تو سونے کے سہاگا نور علی نور ہے. اب نیت کیسے کیا کریں انشاءاللہ وہ ہم کل عرض کریں گے. لیکن جہاں جہاں نیت کرنے کا حکم ہے خاص طور سے احرام باندھنا، طواف کرنا وغیرہ، یہ نیت ضرور کریں. بغیر نیت کے کعبے کے ساتھ 70 بھی چکر لگا لو تو طواف ہونے والا نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رہے کہ احرام کی حالت میں زیادہ تر باوضو رہے. لیکن صرف طواف ایک ایسا عمل ہے کہ جس وقت باوضو رہنا ضروری ہے. بغیر وضو کے طواف جائز نہیں. اگر بغیر وضو کے ہم کعبۃ اللہ کے چکر لگاتے رہے تو ہمارا طواف ہو نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور طواف میں یہی فرق ہے کہ نماز میں کھانا پینا حرام، اور طواف میں بوقت ضرورت کھانا پینا بات چیت کرنا جائز. یعنی طواف نماز کی مثل ہے، اس لیے بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا. اور اگر طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا یا سخت پیشاب یا پخانے کی حاجت ہوئی، آپ اپنی ضرورت کے تحت واپس جا سکتے ہیں. وہاں پر تازہ وضو کر کے واپس آئے، جہاں سے چھوٹا ہے وہیں سے آگے بڑھا دیں، آپ کا طواف ہوگا. لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ، طواف کے لیے جب وضو شرط ہے تو باقی بدل اولا شرط ہے. کبھی کبھی ہماری بہنیں، ہماری بچیاں حیض کی حالت میں ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا اور حیض کی حالت میں طواف کر دیں. اگر حیض کی حالت میں کسی نے طواف کر لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ناپاکی کی حالت میں عام مسجدوں میں بھی اور مسجد حرام میں بھی نہ مردوں کو جانے کی اجازت ہے نہ عورتوں کو جانے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ اگر عورتوں کو واپس آنا ہے ایسے وقت میں وہ ناپاک اور کوئی دوسری صورت باقی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی. ان عورتوں کے لیے طواف رخصت معاف ہے، اس لیے کہ وہ معذور ہے، وہ طواف نہیں کر سکتی. تو ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو طواف نہیں ہو سکتا. اس کا خیال رہے. ایسے ہی اس بات کا بھی خیال رہے کہ طواف کے وقت جیسے باوضو رہنا ضروری ہے ایسے ہی ستر عورت چھپانا بھی ضروری ہے. ستر کا چھپانا جو نماز میں چھپانا ضروری وہ طواف میں بھی چھپانا ضروری. مثلا مردوں کے لیے ناک سے لے کے گھٹنے تک یہ ستر ہے. اتنا چھپنا تو فرض. اگر طواف کرتے ہوئے یہ ستر کسی طریقے سے کھل جائے تو وہ طواف نہیں ہوگا. اور ایسے ہی عورتوں کو اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. عورتوں کے لیے صرف یہ ہاتھوں کی ٹکنی اور یہ چہرہ کا کھلا رہنا اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کلالیاں، پیر کے ٹخنے، اوپر کا حصہ اور پورا بدن یہ عورتوں کا طواف کی حالت میں چھپا رہنا فرض ہے، فرض ہے، فرض. جیسا ہمارے یہاں ماحول ہے عورتوں کے کپڑے آدھی آستین کے ہوتے ہیں، اب دوپٹے کو مسلے کی طرح لپیٹ لیا، اسی میں طواف کر رہی ہے اور عمرہ کر رہی ہے. اور طواف جا کے کہتی ہیں عورتیں آج تو میں 5 طواف کر لی، آج تو میں 6 طواف کر لی، آج تو میں 10 طواف کر لی، آج تو میرا 2 عمرہ ہوا. تو یہ تو سوچ رہی ہے عمرے پہ عمرہ طواف پہ طواف کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو اس طریقے سے بے پردگی سے جتنے طواف جتنے عمرے کیے سب کے سب گناہ میں شامل ہوں گے اور سب کے سب کا وبال آئے گا. اس لیے عورتیں اس کا خیال رکھنے کے جانے سے پہلے
ऐसे कपड़े सिले जो ढीले ढाले हो या रेसी रुमा हो, जिसमें पूरा बदन छुपा हो और ये पूरी कलाइयां ढकी हुई हो, और उसी के साथ साथ और बेहतर है जो ऊपर से वैसा एहराम भी ले ले जो अब यहाँ हिंदुस्तान में भी राइज हो गया, जो इंडोनेशिया मलेशिया की औरतें लेती हैं। कि उसमें जब एक बार बांध लेते हैं तो पूरा हाथ वगैरह इस तरह अंदर रहता है कि अगर वो हाथ वगैरह उठाए नमाज पढ़े तो भी कलाइयां वगैरह नहीं खुलती। और औरतें अगर पैर की जुरात और मोजे वगैरह भी पहने तो उनके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मोजे न भी हो तो कम से कम ये पूरी कलाइयां, पूरी एलियां और पूरे टकले वगैरह छुटे हुए हो, ऐसे ही कपड़ा इन औरतों को पहनना चाहिए। अब तवाफ की हालत में और ज्यादा जरूरी है। अब बगैर इसके तवाफ करेगी तो न उनका हज होगा, न तवाफ ज़ियारत होगा, न उनका उम्रा होगा। उन्हें चाहिए कि इसका खास ख्याल रखे, सतर छुपाना जरूरी है। अगर किसी अज़्म का चौथाई हिस्सा खुला रहा और तवाफ कर दिया, मसलन मर्द ही है, उसकी रान खुल गई चौथाई हिस्सा और उसने पूरा तवाफ कर दिया, या औरत की ये कलाई चौथाई हिस्से खुली रह गई और तवाफ कर दिया, तो फरमाया कि चौथाई हिस्सा खुला तो उस पर दम वाजिब, हर तवाफ पे एक दम, हर उम्रे के तवाफ पे एक दम, इतना दम देना पड़ेगा कि दम देते देते दम निकल जाएगा। एक दम तो ऊपर से देते नहीं, कहते क्या दम को बिला वजह दे देंगे। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम पर्दे का एहतमाम पूरे तौर पर रखें, उसका ख्याल रखें। ऐसे ही आपने बार बार सुना होगा कि हर तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ, ये हर 7 चक्कर के बाद नमाज को पढ़नी ही चाहिए, मकाम इब्राहिम पर या हरम काबा में या हुदूद हरम में कहीं। लेकिन अगर कभी भूल गए, हमें याद न रहा, हम वापस चले आए, अब भूल गए, बाद में याद आया, तो किसी भी तवाफ की नमाज के भूल जाने से उस पर दम वाजिब नहीं है, अल्लाह माफ कर देता। नमाज वाजिब तवाफ अगरचे ये जरूरी है, लेकिन अगर ये भूल गए तो उस पर दम वाजिब नहीं है। आप कल देखेंगे कि हम तलबिया का जिक्र करेंगे। तलबिया यानी लब्बैक पुकारना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह है पूरा तलबिया। पूरे हज के अरकान में यही तलबिया की दुआ ये ऐसी है कि ये वाजिब है जिसको पढ़ना। बाकी हज के अरकान की अलग से कोई मखसूस दुआ नहीं। 5 वक्त की नमाज तो हमेशा फर्ज है, ऊपर नहीं है। हज अल्लाह ने इतना आसान किया है कि बेपढ़ा से बेपढ़ा 19 से 19, लेकिन वो भी अगर हज के लिए जाए तो नमाज तो वो भी पढ़नी है, वहां भी पढ़नी है, लेकिन हज के लिए हज करने जा रहे हैं, वो ये दुआ वो दुआ वो दुआ, कोई दुआ वाजिब नहीं है कि वही दुआ पढ़ी जाए। हाँ, लब्बैक इसके लिए शर्त है कि लब्बैक तो पढ़नी ही है, लेकिन इसमें इतनी सहूलत है कि आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना नहीं जानते हैं, कोई पढ़ा हुआ उनको पढ़ा दे तो वो तुम उसको दोहरा दो तो भी लब्बैक का पढ़ना इंशाअल्लाह रब कबूल फरमाएगा। अब जो लब्बैक है उसकी कुछ सुन्नतें सुन लो। लब्बैक जब भी पढ़ना हो पूरी लब्बैक, मुख्तसर नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग सोचे शॉर्टकट कर ले, बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं होगा, यही कम हो जाएगा। तो ये मुख्तसर लब्बैक पढ़ना नाजायज है, इससे बचना चाहिए। लब्बैक जब भी पढ़े तो पूरी लब्बैक पढ़े, पूरी तलबिया पुकारे, और जब भी लब्बैक पढ़ना शुरू करें इसका ख्याल करें कि लब्बैक 2 बार 4 बार न पढ़े, बल्कि या तो 1 बार या तो कम से कम 3 बार, जब भी पढ़े कम से कम 3 बार पढ़े। अगर दिल आदात पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। और लब्बैक जब भी पढ़े पूरी पढ़े, आवाजें बुलंद पढ़े, यानी हम अपनी मामूल की आवाज से तेज आवाज निकालें ताकि हमारी आवाज दूर तक सुनाई दे, लेकिन इतनी भी तेज न पड़े कि गले की गले पूरे हमारी आवाज बैठ जाए, हम अपनी जान को तकलीफ दे। इतनी जोर से आवाज जरूर हो कि पूर्व जवाब में तो 4-5 हो वो सुन ले, लेकिन याद रहे कि ये जोरदार आवाज से लब्बैक सिर्फ मर्दों को पढ़ना है,
रहा औरतें आहिस्ता आहिस्ता लब्बैक पढ़े, औरतों को जोर से लब्बैक पढ़ने की इजाजत नहीं है। और मर्दों को चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि लब्बैक पढ़े तो रोती सूरत, एहराम बांधे रहे, रोती सूरत रहे, बिसेरता चेहरा रहे। एहराम की हालत में हंसी मजाक ठट्ठा खिखी फुफू इस तरीके से अपने आप को बचाएं। कमर में पट्टा एहराम की हालत में बांधना रुखसत। अगर एहराम की लुंगी पर बेल्ट या पट्टा बांधता है तो बांध सकता है, उसके लिए ममानियत नहीं है। वैसे ही आज पाउच निकला, उस पाउच में कुछ मोबाइल, कुछ पैसे, कुछ सामान, कुछ तस्वीर, कुछ ऐसे सामान रखते हैं, ऐसा वो पाउच भी एहराम की हालत में बांध सकते हैं, उसके लिए ममानियत नहीं है। ऐसे ही देसी लुंगी, देसी चादर का जब जिक्र आता है तो लोग कहें कि हमारे हाथ में थैली है, बिस्तर है, कपड़ा है, कपड़े की थैलियां है, सिरी है, तो सामान ले सकते हैं कि नहीं? तो बिला शुबहा ले सकते हैं। थैली, छतरी, इस तरीके के कोई सामान सिले हुए फैलों के साए में रखना, इसकी कोई ममानियत नहीं, इस सब का इस्तेमाल जायज है। अलबत्ता लुंगी में बटन लगाना और गाज मारना मकरूह है। कुछ लोग ये सोचे कि लाओ कुछ बटन ऊपर से नीचे तक बटन लगा दे या नीचे गाजी मार ले, ये गाज वगैरह मारना चाहे चादर में हो चाहे लुंगी में, ये मकरूह है, कराहत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई भूल से मार दिया है तो उसके ऊपर हम कहें कि दम वाजिब हो जाए। दम तो वाजिब नहीं होगा, लेकिन गाज वगैरह लगाने से अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग ये समझते हैं एहराम में जू भी मारना जायज नहीं है, तो हम क्या करें, गोश्त, मछली, मटन, अंडा खा सकते हैं कि नहीं? पालतू जानवर के गोश्त, मछली का गोश्त या उसके अंडे पकाना, तोड़ना, काटना, सबाह करना ये जायज है। एहराम की हालत में भी गोश्त, मटन, मछली, अंडा जो हलाल सबाह किया हुआ हो उन सबका खाना जायज है। एहराम का जब जिक्र आता है, खाने काबा का जिक्र आता है, तो लोग यही समझते हैं काबा का तवाफ और एहराम ये लाजिम और मलज़ूम है, बगैर एहराम के काबे का तवाफ नहीं हो सकता। लोग जो नहीं गए होते यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एहराम सिर्फ उस तवाफ के लिए है जो उम्रे का तवाफ, उस तवाफ के लिए है जिस तवाफ के बाद सही करनी। लेकिन नफिल तवाफ जो आम तवाफ जिसे कहते हैं, या तवाफ़े रुखसत या तवाफ़े ज़ियारत, इन तवाफों के लिए एहराम शर्त नहीं है। बगैर एहराम के आम लिबास में भी तवाफ किया जाता है और तवाफ किया जा सकता है। ऐसे ही नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत उर्दू में भी कर सकते हैं और जबान से करना अफजल है। एक बात ये भी समझ ले, एहराम से बाहर आते वक्त जब तक सर के बाल न मुड़ाएं या सर के बाल न कतरवाएं, हम एहराम से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में जो दो अफराद एक साथ एहराम से बाहर निकलने वाले, एक भाई दूसरे के सर का हलक कर देता है, वो भाई पहले वाले का हलक कर देता है, दोनों एहराम से बाहर निकलने वाले हो तो ऐसा कर सकते। ऐसे ही दो औरतें हैं, वो उम्रा कर चुकी है या हज के अरकान अदा कर चुकी है, एहराम से बाहर आना है, ऐसे वक्त में उनको सर के बाल कतरवाने हैं, तो उन दोनों औरतों में एक औरत दूसरे औरत के सर के बाल काट सकती है। लेकिन वो औरत या वो मर्द जो अभी एहराम से बाहर होने की कंडीशन में नहीं है, उनके लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी दूसरे का नाखून या बाल काटे। न खुद के नाखून और बाल काटने की इजाजत, न दूसरे के नाखून और बाल काटने की इजाजत। इसी के साथ साथ ये कुर्बानी जो हज के दिनों में की जाती है, ये हज के शुक्राने की कुर्बानी, ये हज के शुक्राने की कुर्बानी हर आदमी जिसने क़िरान का एहराम बांधा हो या तमत्तु का एहराम बांधा हो उस पर वाजिब है। वो ये सोचे कि हमने तो घर से आते वक्त कहा है कि वतन में हमारे नाम की कुर्बानी कर देना, तो ये वतन में जो कुर्बानी होगी ये बकरीद वाली कुर्बानी होगी, और वहां जो कुर्बानी होगी वो हज के शुक्राने की कुर्बानी होगी। और अगर वहां हम मुकीम हैं और यहाँ हिंदुस्तान में हमारे घर पर हमारे बकरीद वाली कुर्बानी नहीं हो रही है, तो वहां हज की कुर्बानी भी वाजिब है और बकरीद वाली भी कुर्बानी वाजिब है, इसका ख्याल रखें। इसलिए हज की जो कुर्बानी होती है
ये कुर्बानी हज के शुक्राने की कुर्बानी है। बकरीद वाली कुर्बानी अगर वाजिब है तो वो हमारे जिम्मे बाकी रहेगी, उसका भी इंतजाम हमें करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसका भी ख्याल रहे कि नफिल तवाफ अपनी जानिब से भी कर सकते हैं, दूसरों की तरफ से भी कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि तवाफ के दौरान अगर हमारे साथियों के लिए कुछ रुकना पड़ जाए तो हम रुक सकते हैं। हमारे साथ कुछ कमजोर लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हैं। तवाफ के लिए इसकी भी इजाजत है कि हमारे साथ कोई कमजोर इंसान है, हम उसको व्हील चेयर पर बिठा दिया और उसका तवाफ करा दिया। उसने अपनी नियत कर ली, हमने अपनी नियत कर ली, उसी को लेकर हमने 7 चक्कर लगाया तो उसका भी तवाफ हो गया, हमारा भी तवाफ हो गया, एक पंथ 2 कायद हो गए। इसलिए हम तवाफ के दौरान अपने साथियों के लिए बजरूरत रुक सकते हैं। और शिद्दत की भूख लगी, ऐसे में कुछ खजूर बिस्किट वगैरह पास में है वो खा ले, या कुछ नहीं है तो बाहर जाके खा ले, प्यास बड़ी शिद्दत की लगी है, ऐसे वक्त में तवाफ के दौरान खाने पीने की शरअन इजाजत है, लेकिन बिला वजह खाना पीना अच्छा नहीं है। ऐसे ही तवाफ के दौरान बातचीत भी बवक्ते जरूरत हस्बे जरूरत कर सकते हैं, बिला जरूरत बड़बड़ करना तवाफ में अच्छा नहीं। तवाफ के दौरान जिक्र इलाही, कलमा दुरूद कसरत करना चाहिए। और अगर बिल्कुल खामोश चुप और तवाफ किया तो भी तवाफ कर सकते हैं, तवाफ हो जाएगा। तवाफ में इतनी जोर जोर से जिक्र करना कि दूसरे तवाफ करने वालों को तकलीफ पहुंचे, इससे मना किया गया। कदा की सुन्नत कहा गया तवाफ करे आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करे। इसी के साथ साथ जरूरत हो वजू की तो वजू करने जा सकते हैं। सही के मसाइल भी करीब करीब तवाफ की तरह है, बस सिर्फ इतना है कि तवाफ बगैर वजू के नहीं हो सकता। और सफा मरवा की सही बगैर वजू के भी हो सकती है कि ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बगैर वजू के करो, कोई मजबूरी है और वो बगैर वजू के करना चाहता है तो सही बगैर वजू के कर सकता है, उसका वाजिब अदा हो जाएगा, सही अदा हो जाएगा। अफसर यही है कि बावजूद ही सही की जाए। इसी के साथ साथ इसका भी ख्याल रहे कि तवाफ जब भी किया जाए 7 चक्कर, काबे के 7 चक्कर को एक तवाफ कहते हैं। अब अगर कोई 7 चक्कर कर चुका और कसदम जानबूझकर 8वां चक्कर शुरू किया तो फिर उसे 7 और करना पड़ेगा, यानी 14 चक्कर करना पड़ेगा। और जब फर्ज तवाफ वाजिब तवाफ है, इन तवाफ के लिए तो 7 चक्कर का यकीन होना भी जरूरी, इसलिए एहतियातन 7 दानों की वो तस्बीह जरूर अपने साथ ले कि जो इतनी टाइट धागे की हो कि दाना नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर रहे। तवाफ के लिए उन 7 दानों के तस्बीह का जरूर ख्याल रखें और 7 दानों की तस्बीह यहाँ अपने हाथ से बना ले कि जिसमें धागा इतना टाइट हो कि नीचे का दाना नीचे ऊपर का दाना ऊपर रहे, नहीं तो ऊपर से नीचे खींचा एक, ऊपर से सर ऊपर से नीचे और गिर गया तो दानों को पकड़ना पड़ेगा, इसमें बहुत तकलीफ होती है। तय है इन 7 चक्करों का ख्याल रखना जरूरी है। और खास तौर से फर्ज और वाजिब चक्करों में अगर भूल पड़ गई कि 5 हुआ कि 4 हुआ कि 3, 6 हुआ कि 7, अगर भूल पड़ गई तो सब छोड़ो, फिर नए सिरे से करो। तो इस तकलीफ से बचने के लिए 7 दानों की तस्बीह जरूर ले लिया जाए। इसी के साथ साथ अल्लाह करीम का करम जब जब काबे पे निगाह पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर दुआ मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। और काबतुल्लाह की बड़ी अजमत है, काबे पर सिर्फ निगाह करते रहो तो काबे को देखना भी इबादत है। अल्लाह ताला और वहाँ फाजिल औकात में सबसे ज्यादा तो नफिल तवाफ करो। मक्के में बाहर वालों के लिए फराइज के बाद सबसे अफजल नफिल तवाफ का करना। नमाजें आप हर जगह पढ़ सकते, रोजा हर जगह रख सकते, तवाफ सिर्फ मक्के ही में हो सकता है। तो ये दूर के रहने वालों के लिए मक्का पहुंचने के बाद फराइज वाजिबात के बाद सबसे अफजल इबादत तवाफ काबा है। तो नफिल तवाफ जितना ज्यादा हो सके करते रहे। हमने बार बार अर्ज किया कि हर 7 चक्कर को एक तवाफ कहते हैं
اور हर तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। इसमें इसका ख्याल रहे कि हर 7 चक्कर के बाद 2-2 रकात नमाज पढ़ते रहे। कुछ लोग सोचे 7 की बजाय 14, 14 की बजाय 21, 21 की बजाय 28 चक्कर, और फिर जब बाहर निकलेंगे तो इत्मीनान से जितने तवाफ होंगे सबकी 2-2 रकात करके पढ़ लेंगे। सिर्फ नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत, ये ममनू है। बल्कि सुन्नत यही है हर 7 चक्कर के बाद 2 रकात, हर 7 चक्कर के बाद 2 रकात, इसका ख्याल रखिए। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, ऐसे वक्त में अगर हमने तवाफ किया तो उस वक्त में हम नमाज पढ़ नहीं सकते। मसलन हमने आज की असर की नमाज पढ़ ली या आज हमने फजर की नमाज अदा कर ली, उसके बाद हम तवाफ कर रहे हैं, तो जब तक के गुरूब आफ्ताब न हो जाए शाम में या सूरज निकल न आए सुबह में, उसके बाद 20 मिनट न गुजर जाए, उस वक्त तक के हम कोई नफिल नमाज पढ़ नहीं सकते। ऐसे वक्त में हम 2, 4, 6 जितने भी तवाफ कर लें, इन सब की नमाजें बाकी हो, गैर मकरूह वक्त आ जाए, कामिल वक्त आ जाए, उस वक्त हम एक साथ सबकी नमाजें पढ़ें, उस सूरत में इसकी नमाज की इजाजत है। इस सफर में खादिम बनकर जाएं, मखदूम बनकर न जाएं। यकीनन इस सफर में नमाज की, तवाफ की और दीगर आमाल खैर की, नफली अमाल के बहुत सवाल, लेकिन इसी मुसलमान भाई की मदद, इसी कमजोर की मदद, इसी परेशान हाल की परेशानी दूर करना, ये बहुत बड़ा कार्य सवाल। किसी बूढ़े को देख लो, उस बूढ़े की कमजोरी पर रहम करके अगर उसकी व्हीलचेयर लेकर तवाफ करा दो, उसका हाथ करके तवाफ करा दो। अकेले करोगे 3 तवाफ होगा, बेचारे को तवाफ कराओगे तो 1 ही होगा। ये 1 तवाफ उसको कराओगे तो अल्लाह 30 तवाफ का सवाब। ये मत सोचना कि पीछे मैं अपना क्यों नुकसान करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम बंदों की तरह नहीं है कि गिन गिन के देता है, गिन गिन के देता है। अल्लाह के यहाँ तो टूटे हुए दिल देखे जाते हैं, इखलास और लाहियत देखी जाती है। अल्लाह करीम करम फरमाता है। तो सफर में जब भी यहाँ से निकलो, हवाई जहाज में, जिद्दा में, जहाँ वहाँ कमजोरों को देखो, परेशान हालों को देखो, जो सामान उठाने में, रखने में, लेने में, आने में, जाने में तकलीफ में है, उनकी मदद करो। जितनी उनकी मदद करके खादिम बनोगे, अल्लाह उतने ज्यादा तुम्हें मखबूल बनाएगा। तो हज के सफर में इसका खास ख्याल रखो और सदका और खैरात खूब देते रहो। हज मबरूर की एक पहचान बताई गई। हज मबरूर की, मकबूल की एक पहचान ये कि हाजी का दस्त दराज होता है, सदका और खैरात करता रहता है। तो मेहमान खुदा, मेहमान रसूल की खिदमत ये बहुत बड़ी नेमत है। इन सारी बातों का ख्याल रखा जाए। इंशाअल्लाह कल हम यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि हम अपने घर से निकले किस तरीके से निकले, क्या क्या करके निकले, उसके आदाब क्या है। अल्लाह ताला इस सफर को आप सबके लिए आसान फरमाए, कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए और ज़ियारत रसूल मकबूल से शाद काम फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।